Good morning, everyone. Today we are starting with the first chapter, that is Introduction of Commerce and Business. ठीक है? Now, in this introductory part, let us read quickly कि क्या दिया हुआ है. So basically, there is this conversation between 3-4 people. ठीक है? देखते हैं क्या दिया हुआ है. Mayuri, Neha, Rajesh, Charmi, and Gautam, who were good friends, gathered in the classroom. ठीक है? Now they were chatting with each other and shared their experiences. Mrs. Deshmukh, who is a counselor, visited the class and asked some questions to everybody. Okay, so let us see now what this counselor has asked. So Mrs. Deshmukh asks, did you experience during your SSC preparations that your mother served you with tea and coffee? So everybody said a yes. Then she asked, it means few activities can be performed by your mother. Now, do you gathered in the canteen after the exam, ate any food and paid money? Everybody said yes. We gathered in the canteen, ate food and paid money for the same. Okay. Now, what does she say? That do you know the difference between economic and non-economic activities? Okay. So after asking these two questions, she is asking them that do you know the difference between economic and non-economic activities? Okay. So then Mayur and Gautam say yes. When do you when you do any work and in return you get money, that is called as an economic activity. ठीक है? And आगे क्या लिखा है? Opposite of this is non-economic activity. You do not get any money in return. Okay, I'll explain you. When your mother was preparing tea for you during your exams, ठीक है? तो उसको हम economic activity कहेंगे क्या? The answer is no. So mother preparing tea coffee for you, that will be classified in non economic activity. Correct? और ये classify कैसे किया हमने? Because is your mother asking you for money? nahi na, your mother is not asking you for money. But whereas you go outside and you order a coffee and you drink and you pay for it, usko hum kya kahenge? Economic activity. Why? Because you are paying the person who has served you. Right? देखो यहाँ पर नीचे वही reason लिखा है. Read the answer. ओके अब ये राजेश ने ना एक एग्जाम्पल भी दिया है. लेट अस रीड व्हाट इज दिस एग्जाम्पल. व्हेन मदर स्टिचेस ड्रेस फॉर हर डॉटर or mother serves us tea or coffee during exam, that is known as a non-economic activity, right? Because the mother does not charge money. तो इसको हम क्या कहते हैं? Non-economic activity. आगे, but when a tailor stitches a dress, it is called as an economic activity because he gets money. So whenever money is involved, that will be called as an economic activity. ठीक है? Whereas where there is no money, that will be called as non-economic activity. ठीक है? जैसे मदर का एग्जाम्पल. ओके, नाउ सी व्हाट आगे उसने क्या कहा है मिसेस देशमुख ने. मदर स्टिचेस ड्रेस एंड टेलर आल्सो स्टिचेस ड्रेस. द एक्टिविटी इज सेम. ठीक है? But stitching done by mother is non-economic activity because she does not get any money. Whereas a tailor doing the same activity gets money. So this becomes a economic activity. ठीक है? आगे क्या है? इस टेलर्स एक्टिविटी अ बिजनेस और अ प्रोफेशन? है ना? चलो हमको ये तो पता चल गया कि टेलर तो हमसे पैसे लेगा. पर आगे एक स्टूडेंट ने ये पूछा है कि टेलर जो ये कर रहा है, ड्रेस स्टिच कर रहा है, क्या हम वो उसका बिजनेस मानेंगे या उसका प्रोफेशन मानेंगे? तो व्हाट डज शी से? वेल चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न अबाउट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन डिटेल. Okay, so after understanding this entire chapter, you will be able to classify कि which is what is called as business, what is called as profession. ठीक है? Now for example, अगर मैं आपको एक quick example देती हूँ, a chartered accountant, okay, when he becomes a chartered accountant and he starts working, he starts practicing, so he वो भी customers से पैसा कमा रहा है, right? But this will be called as a profession. ठीक है? उसको हम business में नहीं मानेंगे. A chartered accountant or a company secretary or any expert, okay, a advocate, a doctor, ठीक है, a lawyer, these people are called to practice their profession. So इसलिए ये प्रोफेशन करते हैं. जो बाकी लोग होते हैं, they do the business. ठीक है? मैंने आपको बहुत कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं. हमको
बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमको डिटेलिंग में भी पढ़ना है, सो इट विल बी अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, नाउ लेट अस सी द चैप्टर बिगिंस. Okay, let us see what is the introduction. All human beings require different types of goods and services to satisfy their needs. Correct? So they keep themselves busy and do some activity throughout their life. All activities can be classified into economic या non-economic, है ना? दो ही, या तो एक्टिविटी इकोनॉमिक होगी या तो नॉन इकोनॉमिक होगी, राइट? उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा. या तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, आपकी मम्मी आपको टी कॉफी बना के देगी, या वॉट एवर शी डज फॉर यू, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करेंगे, राइट? बिकॉज नो मनी इज ट्रांसफर्ड. और बाकी जो एक्टिविटीज हैं जिसमें आप पैसे देते हो, उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी तीन तरह है, या तो बिजनेस होगा, या तो प्रोफेशन होगा, या तो जॉब होगा. जॉब मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब आगे इन तीनों के बारे में डिटेल में फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं. ओके, सो ऑन दिस फर्स्ट पेज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज, अगेन डिटेल में, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज बिजनेस. ठीक है, ये बिजनेस हो जाने के बाद फिर प्रोफेशन है, प्रोफेशन हो जाने के बाद फिर एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, चलो लेट अस क्विकली सी व्हाट इज द डेफिनेशन वगैरह क्या दिया हुआ है. ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का देखो पहले. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म टू सैटिस्फाई personal, social, religion, cultural and sentimental requirements. Okay, for example, reading books, serving people, cooking by mother, etc. ठीक है, तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो. टू सैटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजन, कल्चरल रिक्वायरमेंट्स विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन. अंडरलाइन दिस पॉइंट. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मॉनेटरी. पैसे की बात नहीं करते हैं हम, बट फिर भी हमारे कुछ नीड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, जैसे कि पर्सनल नीड सेटिस्फाई हो रहा है. अगर मैं आज, इफ आई एम रीडिंग अ बुक, so which need is getting satisfied? My personal need is getting satisfied. Correct? If today I go to the temple and I visit the temple, okay, और मैं वहां पर कुछ डोनेशन वगैरह कुछ नहीं दे रही हूँ, तो मेरा कौन सा नीड सेटिस्फाई हो रहा है? My religious need. Correct? So on and so forth. So make sure that you also write the examples in case if this is asked. Okay, now quickly come to what is economic activity. वही होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का उल्टा होगा, जिसमें पैसों की बात की जाएगी. करेक्ट? क्या लिखा है? एक्शंस दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and consumption of goods and services at all levels within a society is economic activity. For example, worker working in a factory, तो मतलब वो काम कर रहा है, तो मतलब वो obviously पैसे लेगा, he will obviously ask for wages, right? Thus economic activities facilitate earning livelihood. मतलब वो उधर काम क्यों कर रहा है? So that उसको पैसे मिले, पैसे मिलेंगे तब जाके he will be able to live, right? So an economic activity is carried out so that a person earns his livelihood. ठीक है, so this was the difference between non-economic and economic activities. Okay, now let us read what is the meaning of business. Okay, business represents organized efforts by an individual or group of individual. मतलब क्या? या तो एक अकेला इंसान बिजनेस स्टार्ट करेगा, या दो तीन एक साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आगे, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट, or to reap the reward by way of profit. It satisfies multiple needs of the society. मतलब क्या? बिजनेस में यूजुअली होता क्या है? You are selling goods and services to the customers in the market. Correct? आप कंपटीशन फेस करते हो, कस्टमर्स आपको पे करते हैं, राइट? तो बिजनेस इज ऑब्वियसली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें पैसे आते हैं. ठीक है, तो बिजनेस क्यों किया जाता है? बेसिकली फर्स्टली ये कि हाँ आप सेल्स कर पाओ, और सेकेंडली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव. करेक्ट? ओके, आगे देखो क्या लिखा है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ द गुड्स. इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फिनिश्ड गुड्स produced in the factories. Goods can be produced with manpower or with the help of machines. मतलब क्या? आप बिजनेस में जो गुड्स बेचोगे, हो सकता है कि वो गुड्स को आप ही मैन्युफैक्चर करो, आप ही प्रोड्यूस करो, या हो सकता है कि आपने किसी और से खरीदा है और अब आप कस्टमर को बेच रहे हो.
ठीक है, तो गुड्स कैन बी सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, या फिर हो सकता है कि आपने ही प्रोड्यूस किए हो, है ना, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और एंड नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, है ना, दो ही तरीके हैं गुड्स प्रोड्यूस करने के, या तो आपने लोगों को लगा दिया टू इन द मेकिंग ऑफ द गुड, या फिर आपने मशीन्स के थ्रू वो गुड बना दिया। ठीक है, देखो एग्जाम्पल दिया है, example cultivating piece of land and growing food grains is an example of agricultural production, right? However, converting seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine is an example of manufacturing goods, है ना। तो अभी आपने वो ये एग्रीकल्चरल गुड्स से सीड्स तो आ गए आपके पास, अब वो सीड्स से ऑयल कैसे बनेंगे, थ्रू मशीन्स एंड थ्रू मैन पावर ऑब्वियसली, राइट। Okay. Distribution includes marketing. It involves transport, warehousing, advertisement, transfer of goods from producer to the final consumer. तो चलो आज मेरे पास गुड्स आ गए हैं, मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मेरे पास गुड्स आ गए हैं, पर मेरे को कस्टमर्स को पहुंचाना है। कस्टमर्स को पहुंचाना है मतलब मुझे ये गुड्स को मार्केट में लेके आना है, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन की तो जरूरत है, राइट। फिर मुझे लोगों को बताना भी है कि ये गुड्स मार्केट में है, मतलब मुझे एडवर्टीजमेंट भी करना है, राइट। अब एडवर्टीजमेंट में बैनर्स लगा के करूं, या मैं टेलीविजन पे एड दे दूं, या कुछ भी कर लूं, ठीक है। फिर वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, देखो कुछ कुछ जो गुड्स होते हैं ना वो बहुत पेरिशेबल नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट, मीट, ठीक है। तो इनका एक्सपायरी का जो टर्म होता है वो बहुत ही छोटा होता है। सो व्हाट डू आई डू, मैं एक कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस खरीद लेती हूँ, या हायर कर लेती हूँ, या वट एवर इट इज, ठीक है। एंड देन देयर आई एम कीपिंग माई गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो जल्दी से खराब ना हो। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इन सारी चीजों को रखना पड़ता है। तो अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे सिर्फ गुड्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आई ऑल्सो हैव टू कॉन्सेंट्रेट वेदर दीज facilities of transportation, warehousing, advertisement are also available or not, ठीक है। so that ऐसा ना हो कि मैं बार बार बस बना ही रही हूँ और गुड्स भी एक्सपायर हो जा रहे हैं, ठीक है। so I need to preserve them in a warehouse, okay। so this is the introductory part of business. Come to the next page. okay, so next page में आपको definition है, you have the definition and you have the features, okay। chalo let us quickly read this. okay, प्रोफेसर हाने का पढ़ लेते हैं फर्स्ट वाला ही। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज which are directed towards production and processing of wealth. I think this is very easy, right? Business activities are those human activities which are directed towards production and processing. Okay. Okay. Now come to the features of business. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। ये तो हमने क्लासिफाई कर लिया, ये तो हमको पता चल गया है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। व्हाई, बिकॉज यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम इट। ओके, लेट अस रीड, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी as it is undertaken to earn money, right? It is not because of love, affection, feelings and sentiment. मतलब आप गुड्स ऐसे ही बेचोगे क्या, नहीं, ऑब्वियसली यू विल चार्ज द पर्सन, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगा। इसका लव, अफेक्शन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स या इमोशंस के साथ कोई कनेक्शन है क्या, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू पार्टीज, मतलब एक बेचेगा एक खरीदेगा, राइट। ओके, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज, मिनिमम two parties are required, right? That is the seller and the buyer. Transactions is a result of agreement between buyer and seller, which may be oral or written. तो not necessary कि आप एक रिटन अग्रीमेंट ही बनाओ, ओरल भी चलेगा, ओरल भी चलता है, रिटन भी चलता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, बिजनेस कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट, यू वांट टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। okay, let us read, the basic purpose of business is to earn the profit from its activities, correct। businessmen try to maximize profits either by increasing sales or reducing the cost। तो दो तरीके हैं कि जिससे कि आप अपना प्रॉफिट और बढ़ा सकते हो, या तो आप अपने सेल्स बढ़ा लो,
या तो आपके जो इतने कॉस्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर लो, तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, राइट। आगे, इट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन इन द लॉन्ग टर्म। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, कुछ कुछ बिजनेस में प्रॉफिट बहुत होता है, राइट। क्यों क्यों बहुत होता है? क्योंकि उस वो वाले गुड्स में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ कुछ में बहुत कम होता है, राइट। और बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा हर महीने ये भी फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड तो नहीं है कुछ भी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड विथ बिजनेस एंटरप्राइज। Goods are either manufactured or procured from the supplier with the aim of selling। या तो आप गुड्स खुद ही बनाओ, अपने अपने बिजनेस इंटरप्राइज में खुद बनाओ, खुद बेचो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने भी किसी सप्लायर से खरीदा है और आप आगे बेच रहे हो, ठीक है। पर दोनों केसेस में व्हाट इज द एम? एम इज टू सेल इट टू फर्दर कस्टमर्स फॉर प्रॉफिट, ओके। पॉइंट 5 देखो, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। Business involves transfer of goods and services directly or indirectly with money or money's worth. Monetary exchange is exchange with money. That is example, buying notebook for cash. On the other hand, in case of barter exchange, goods and services are exchanged for other goods and services. Example, wheat is exchanged for rice. ये barter exchange देखो पहले बहुत common था, अब तो hardly होता है या शायद नहीं भी होता है। What is barter exchange? जैसे there are some people who come to your house, okay, and they take your old clothes and then they sell you vessels वो आपको बेचते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज। यहाँ पर पैसों की बात आई है क्या? नहीं, उसने आपको वेसल्स दिए, आपने उसको पुराने कपड़े दे दिए, राइट। दिस इज कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज। सो व्हीट इज एक्सचेंज फॉर राइस, इसमें पैसे हैं क्या कहीं पर? नहीं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बार्टर एक्सचेंज। नेक्स्ट पैरा देखो, if goods are produced for own consumption, that is stitching a dress for daughter, it cannot be called as business। ये तो बिजनेस एक्टिविटी तो छोड़ो, ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं है, राइट। तो इसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे? इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। आगे क्या लिखा है? इन द एब्सेंस ऑफ इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन, that is stitching a dress for a daughter, it cannot be called as business, right? It is not a business. Why? Because firstly will you ask for money from your daughter? नहीं। ओके, आगे क्या लिखा है? बट स्टिचिंग अ ड्रेस इन अ टेलरिंग शॉप and taking stitching charges is a business। अब वो टेलर, if the tailor is stitching and giving you, of course he will charge, he will not give you for free, so that will be called as a proper economic activity and that will be a business, right? Similarly, if goods are donated or given as gift, then it cannot be considered as a business। if you just simply go and if you do charity, तो चैरिटी में सिर्फ आप देते हो, उनसे कुछ वापस लेते हो क्या? नहीं। मैंने आज अपने सारे पुराने कपड़े दे दिए charity में, will I ask for money? Then what is the use of charity, right? So here only I am giving my clothes, I do not ask anything for return, ठीक है। So this cannot be considered as a business activity where there is pure donation or charity, ठीक है। Point number 6 देखो, dealing in goods and services, okay। Every type of business transaction is concerned with either goods or services। In the absence of goods and services, business cannot take place। These goods may be consumer goods or capital goods, okay। However, services created are intangible। Now can you see the services? Now today I am giving you the services of teaching you. Are these teaching services can be seen or can be felt or can be touched? The answer is no, services are intangible, okay। For example, transportation, banking, insurance services, so these all are services, you cannot feel these services। Whereas when we speak of goods, है ना, goods को we can touch, we can see, we can smell, we can feel the goods, right? So goods are tangible whereas services are intangible, okay। अब नीचे गुड्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। गुड्स या तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं या तो कैपिटल गुड्स होते हैं। देखो, टी, मिल्क, पेंसिल, दीज आर कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल में मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा, ओके। सो दीज आर कैपिटल गुड्स। वहां पर वो कंज्यूमर गुड्स क्यों है? दे आर डायरेक्टली कंज्यूमेबल और यहाँ पर दे आर कैपिटल गुड्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 7, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, ओके।
Every business requires regularity. That means consistency, right? One single transaction does not constitute business. मतलब क्या? For example, I'll give you. Today I have a mobile phone, okay, and I am selling it to a friend. Now, चलो मैंने उससे पैसे भी ले लिए, but will this call to be a business? Am I doing it every day? नहीं, मेरे पास बस एक फोन पड़ा था जो कि अब सेकेंड हैंड फोन था, ठीक है, and I sold it to one of my friend and I also took money from her. But will this qualify to be a business? Am I doing it regularly? Is there any consistency? नहीं, I am not doing it regularly. तो will this qualify to be business? Just because मैंने एक single transaction किया, उस that will not constitute to be a business. Okay? देखो क्या लिखा है. If a person sell his own motor car and earns profit, then it will not be considered as a business. क्योंकि आपने एक ही बार कार बेची ना, वो भी आपने खुद की कार बेची, खुद की छोड़ो किसी और की भी बेची होती, सो क्या हम उसको बिजनेस कहते? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द सेम ट्रांजैक्शन एवरी डे, राइट? वो आपके पास बस एक कार पड़ी थी, आपने बेच दी फॉर प्रॉफिट, ठीक है, सो दिस विल नॉट क्वालिफाई टू बी अ बिजनेस. बट इफ अ कार डीलर सेल्स एंड परचेसेस रेगुलरली, फिर हम उसको बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि वो चीज रोस्ट कर रहा है, ही इज कैरिंग आउट दोस ट्रांजैक्शंस एवरी डे, ठीक है. सो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, देयर हैज टू बी कंटिन्यूटी. सिर्फ आपने एक ही बार ट्रांजैक्शन किया तो उसको बिजनेस नहीं माना जाएगा. ओके ओके, कम टू पॉइंट नंबर 8, अनसर्टेन रिटर्न्स. अच्छा, मैंने आपको बस वही कहा, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे पता है क्या कि इस महीने मुझे इतना प्रॉफिट होगा? नहीं, मुझे नहीं पता है. देयर इज अनसर्टेनिटी, ठीक है. क्या लिखा है? इन बिजनेस द रिटर्न्स आर नेवर प्रिडिक्टेबल. है ना, पता नहीं होते हैं कि इतने आज ये महीने में इतना प्रॉफिट होगा. ओके, बिजनेस में अर्न अ प्रॉफिट और सफर अ लॉस, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. either you may earn a profit, either may you suffer a loss, right? Nothing is fixed, in short. Okay, point number 9, element of risk. अब risk तो होता ही है business में. You never know that when a huge competitor enters into a market and maybe vanishes your business, right? Or you may suffer such a huge loss. Okay, risk is the key element of every business which is concerned with exposure to loss. It is due to some unfavorable event. Every business will have some or the other risk. Intensity of the risk can be minimized but can't be avoided. अब risk है तो देखो, अब supposedly आप business कर रहे हो, अच्छा खासा business चल रहा है आपका, अचानक से कोई एक huge कंपनी आ जाती है जो कि वही कुछ बेच रही है जो आप बेच रहे हो. अब उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन है और वो कम दाम पर बेच रही है, तो आपको रिस्क तो हुआ, क्योंकि अब आपके कस्टमर्स उसके पास जाएंगे, क्योंकि वो कम पैसों पर बेच रहा है. और उसको ही सच अ ह्यूज पर्सन और ही इट्स सच अ ह्यूज कंपनी कि उनको अगर प्रॉफिट कम भी हुआ तो भी चलेगा, ठीक है. अब वो तो कम प्राइस पे बेच रहे हैं, सो दैट मीन्स द कस्टमर्स विल गो देयर. सो नाउ यू आर फेसिंग अ रिस्क, यू आर फेसिंग अ लॉस, राइट? तो क्या ये रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो? द आंसर इज नो, राइट? रिस्क तो रहेगा ही, है ना. आप रिस्क को कम कर सकते हो पर आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है. आगे क्या लिखा है? सर्टेन फैक्टर्स आर बियॉन्ड कंट्रोल, लाइक change in the consumer's taste, likes, dislikes, fashion, change in the methods of production, fire, theft, natural calamities में earthquake आ गया, floods आ गए, पूरा business चौपट हो गया, right? नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम ऑल द अबव फैक्टर्स. मतलब क्या? ये रिस्क एलिमेंट वाली ये सारी चीजें तो हमेशा रहती हैं. आज आप कोई गुड्स बना रहे हो जो कंज्यूमर्स को पसंद आ रहा है, कल हो सकता है कि उनके प्रेफरेंसेस बदल जाएं, फैशन बदल जाए, ट्रेंड बदल जाए, उनके टेस्ट्स बदल जाएं, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Customer satisfaction is the ultimate aim of the economic activity. Modern businesses believe in satisfying the customers by providing quality products and services. The purpose of the business is to create and retain the customers. Okay? तो आप business in short कर क्यों रहे हो? So that आप customers को goods and services बेचो, right? जो वो goods and services बेचो जो उनके needs को satisfy करे, right? So in short, customer satisfaction is also one of the goals of the business, right? Okay, so here we complete business.
Now quickly read all these points. पहले आप definition पढ़ लो and read the features. Okay, quickly just go through. We'll start with profession in 2-3 minutes. Okay. Okay, come to profession. Now what is profession? मैंने आपको already बताया. Professions क्या कौन से होते हैं? Doctor, lawyer, chartered accountant, company secretary, right? These people are called. देखो यहाँ पर example भी वही लिखे हैं. ठीक है. Profession is a part of economic activity, right? ये भी पैसे चार्ज करते हैं, है ना? मुफ्त में तो काम नहीं करते हैं. Under which a person uses his educational knowledge to render services for earning income, है ना? तो मतलब उन्होंने जो जो पढ़ा है वो उसी चीज को अप्लाई करते हैं इन प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा, है ना? सो दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड अप्लाइंग देयर नॉलेज. ठीक है. देखो फीचर्स. एम क्या होता है? एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी, राइट? ये तो चलो हमको पता है. प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, अर्निंग मनी के लिए ही होता है. Also they render services to their clients and solve their problems, है ना? तो डॉक्टर हो गया तो he will check up, ट्रीटमेंट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी उसके टैक्सेस होंगे, फाइल्स, रिटर्न्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी उसमें चीजें होंगी, he will solve the problems, right? लॉयर का भी he will fight, he will represent you in on your behalf in the court, right? तो आपके प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो रहे हैं. इन शॉर्ट कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, या फिर ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन के प्रॉब्लम्स हो, राइट? तो डॉक्टर विल हैंडल योर फिजिकल प्रॉब्लम्स, वेयर जो आपकी लीगल प्रॉब्लम्स हैं वो लॉयर सॉल्व करेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्वालिफिकेशन. अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर अक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन. मतलब डिग्री की जरूरत है, राइट? उसके बिना आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्या? नहीं. ओके. Every profession has a certain set of body of knowledge. This knowledge has to be acquired only by systematic training. One cannot practice profession unless this knowledge is acquired. मतलब सिर्फ डिग्री ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी एसेंशियल है. ठीक है. नेक्स्ट, रिटर्न्स. Professional gets fees in exchange of their services. Income received by profession is not fixed, है ना? Profession can be employed in organization or self employed. अब जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो वो खुद का ऑफिस सेटअप करेगा या तो वो कोई कंपनी के साथ काम करेगा. तो वेदर देखो वही लिखा है, प्रोफेशंस प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना? खुद का सेटअप करना या किसी के साथ काम करना, कुछ भी पॉसिबल है. ठीक है. अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट्स सैलरी, बट दोज हु आर प्रैक्टिसिंग प्राइवेटली दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दे गेट फीस. तो जो खुद का जिसने ऑफिस स्टार्ट किया है और जो क्लाइंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको फीस मिलती है. पर अगर वो कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी. ठीक है. सो वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब क्या? किसी के साथ काम करना. सो ही विल गेट सैलरी. बट जो खुद से ही उसने ऑफिस सेटअप किया है और जो प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहा है उसको क्या मिलेगी? फीस मिलेगी. ठीक है. सो नो द डिफरेंस बिटवीन टू. ओके. पॉइंट नंबर 4, कैपिटल. Profession can be practiced independently or professionals can work with someone under someone. Independent professionals require huge capital for setting his practice. तो मतलब यहाँ पर अगर मैं आज सोचती हूँ कि मैं आज खुद का ऑफिस सेटअप करती हूँ, ठीक है, तो मुझे पैसे तो बहुत रिक्वायर्ड होंगे. ज्यादा से ज्यादा पैसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही इन्वेस्ट होगा, राइट? So if supposedly if today I have zero capital, so what I should consider that I will work under someone. But अगर आज पैसे हैं मेरे पास, okay, so then I can even think of starting with my own practice. ठीक है. Okay, next, registration and membership. Some professions have a council which regulate activities. These professionals have to register themselves with respective councils. Example, Bar Council of India for lawyers. अब हर प्रोफेशन के लिए उनका काउंसिल का नाम दिया है. लॉयर के लिए कौन है? BCI. ओके. देन ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. देन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, है ना? तो हर प्रोफेशन के लिए उनके काउंसिल के नाम दिए जहां पर उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. ठीक है, खुद को. द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन्ड by the council must be strictly followed by every profession. Every practicing professional has to acquire membership from respective council.
है ना। तो एक बार आपने अपनी जो भी एजुकेशन है वो आप कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद आपको ये रिस्पेक्टिव काउंसिल्स में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ओके, बाय पेइंग द अमाउंट जितना भी होगा रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, इफ टुडे आई एम अ डॉक्टर, कैन आई ट्रांसफर माय डॉक्टर्स डिग्री टू माय सन? नो। तो ये क्या ट्रांसफरेबल है? नहीं ट्रांसफरेबल है। हाँ, अगर यही बिजनेस होता तो मैं बिजनेस को हैंड ओवर कर सकती हूँ, बट क्या मैं अपने प्रोफेशन को हैंड ओवर कर सकती हूँ? द आंसर इज नो। ठीक है, क्या लिखा है? प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, अंडरलाइन करो, टू अदर पर्सन। एग्जाम्पल, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, हिज मेडिकल एजुकेशन, ओके। तो आप बस अपनी डिग्री उठा के आपके नाम के, अपने बेटे या बेटी के नाम पर नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब तक क्या, कभी भी कर नहीं सकते हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, नेचर ऑफ वर्क। Professionals charge fees in exchange of services. Example, an architect designs the layout of the office for the fees. तो this is in fact ये inclusive है, ये चीज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि प्रोफेशंस क्या चार्ज करते हैं, दे चार्ज फीस, ओके। बस सिंपल सा पॉइंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोफेशन। हमने बिजनेस के बारे में ऑलरेडी फीचर्स पढ़ लिए हैं। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोफेशन, ठीक है। आप सब हेडिंग्स भी एक बार लर्न कर लोगे ना तो भी यू विल बी एबल टू फ्रेम योर ओन कंटेंट। चलो एम्प्लॉयमेंट भी देख लेते हैं। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब करना, ठीक है। क्या लिखा है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। इसको अंडरलाइन करो, अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि आप सैलरी तो लोगे ना उनसे, राइट, फ्री का तो काम नहीं कर रहे हो आप, ओके। There is employer employee relationship. Employer is a person who offers the work and person who accepts the work is called as an employee, है ना। तो वहां पर जो आपको हायर करेंगे, that person will be called as the employer, and you are working for the person and you will be called as an employee, right? Remuneration terms and conditions are agreed by both of them, right? So before signing, the terms and conditions are fixed, it is already mentioned in the agreement, है ना। आप एक agreement sign कर लेते हो जिसमें आपको कितना पैसा दिया जाएगा, आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको करना क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्विकली कम टू द फीचर्स। ओके, अब इसमें एम क्या है? अगेन, द एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स, ओके, इन शॉर्ट पैसे कमाना। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। ईच जॉब रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन। द जॉब कैन बी स्किल्ड और इट कैन बी अनस्किल्ड। फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, जॉब ऑफ नर्स, मतलब उसको अगर नर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर स्किल्ड जॉब है, so she also needs some kind of qualification, right? But no specific qualification for unskilled. Example, office boy, है ना। ऑफिस बॉय का काम तो कोई भी कर सकता है, right? You do not need any particular education for that, okay? Next, monetary returns. Wages or salaries is given as returns to employees, right? Wages are decided in advance. Wages are paid like daily or weekly, but salary is paid monthly, okay? Along with salary, other benefits like bonus, quarter to stay, subsidized food in canteen, etc. can be given. So these are the additional benefits along with salary, okay? These are additional benefits along with salary, ठीक है। Capital. No capital is required for employment because employer provides everything, है ना। So no capital, you do not have to invest anything, okay? So you just have to go there and you have to work. You do not need any capital because you are working in the organization of the employer, right? So you do not need any capital to set up anything, ठीक है। Next point देखो, registration. Point 5, registration. No registration is required, right? If you are working with someone, registration की as such कोई जरूरत है ही नहीं। Every employee has to follow the rules and regulations mentioned in the terms and conditions of the contract, है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने साइन किया है,
आपको उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशंस वो सारी चीजें आपको वो फॉलो करनी है. यू डू नॉट नीड टू गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ एनीवेयर. ठीक है. Non-transferability, employment cannot be transferred from one person to another. Example, if a teacher retires, he cannot transfer his job to his son or daughter. तो इसमें भी transferability नहीं है. जैसे profession में भी transferability नहीं थी, यहाँ पर भी there is no transferability. Okay. Last, nature of work. Every employee is expected to work which is given to him. The nature of the job decides the nature of the work. अब depend करता है ना, if the person is a teacher, तो what will be the nature? To come at proper timing, to complete the syllabus, to take weekly tests, है ना, so on and so forth. तो आपका जो है ये employment उसके हिसाब से decide होगा कि nature of work क्या होगा. ठीक है, कुछ ऐसे fixed नहीं होता है. Okay. So these were the different types of economic activities. हमने business के बारे में पढ़ा, profession के बारे में पढ़ा, और अब हमने employment के बारे में पढ़ा. Before that, we also understood what is an economic activity, what is a non-economic activity. ठीक है? Now, quickly we'll complete this also. चलो, come to this point. We are just reading the subheadings. ठीक है? यस, गवर्नमेंट जॉब में कुछ कुछ आज भी ऐसे होते हैं जो ट्रांसफरेबल होते हैं, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो कि उसमें भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, बट यहाँ पर जो हमने पढ़ा ना, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल. दे आर बेसिकली स्पीकिंग ऑफ प्राइवेट जॉब्स. ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स तो खैर आज भी होते हैं ट्रांसफरेबल टू सन और डॉटर. दिस इज ट्रू. ओके, अब यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं बिजनेस के. अब बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली, विच आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. या तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे या तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, है ना. हम सिर्फ सब हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं. देखो, फर्स्ट इकोनॉमिक क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट, पैसे कमाना. सेकंड, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, है ना. कस्टमर्स ज्यादा मिलेंगे, सेल्स ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा. राइट. नेक्स्ट, इनोवेशन. अगर आप कोई ऐसी चीज बनाते हो जो मार्केट में आज अवेलेबल ही नहीं है, अगर आप आज वो इनोवेटिव चीज लेके आ रहे हो, राइट, सो पीपल विल ओनली बाय फ्रॉम यू. ठीक है, तो इनोवेशन. एंड लास्ट, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. सो यू हैव टू यूज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे सो दैट वेस्टेज ना हो फर्स्टली, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो. ठीक है, दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या होंगे. सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना, सो दैट कस्टमर्स एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इन यू. क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर आपसे ही खरीदेगा. राइट. नेक्स्ट, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. जैसे कि क्या? ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, रॉन्ग मेजरमेंट्स, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है. अगर आप कभी पकड़े जाते हो व्हाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स, तो अंडरस्टैंड कि आप जो पब्लिक में जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, जो जो एक पब्लिक का भरोसा होगा आपके ऊपर, वो पूरा खत्म हो जाएगा. एंड देन अगेन, टू रीबिल्ड द ट्रस्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके, सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट प्रैक्टिस दीज थिंग्स जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगर आज आप बिजनेस कर रहे हो तो मतलब आप और दो लोगों को एम्प्लॉय करोगे, राइट, फिर आप उनको सैलरी पे करोगे. ठीक है, तो यू इफ यू आर नॉट डूइंग बिजनेस अलोन, दैट मीन्स यू विल एम्प्लॉय पीपल. राइट. क्या लिखा है? बिजनेस इज सोशो इकोनॉमिक. बिजनेस शुड क्रिएट जॉब्स, है ना. और फिर जॉब्स आप क्रिएट करोगे तो आप उनको सैलरी दोगे, राइट, सो दैट उनका भी घर चलेगा. दे विल ऑल्सो अर्न देयर लाइवलीहुड. राइट. नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज. तो सी, सिर्फ आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी उतना काफी नहीं होता है. बस यू ऑल्सो नीड टू, देखो क्या लिखा है, फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, impartial policies and offering incentives. Now, just because he is a male, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ज्यादा पैसे दोगे और उसको ज्यादा अच्छे से ट्रीट करोगे in comparison to a female, है ना. There should be equal opportunities. There should not be any discrimination, नहीं होना चाहिए. So there should not be any kind of impartiality. Okay. Next, helps to solve social problems. Now क्या लिखा है? Due to rapid industrialization, many problems arise like traffic jams, growth of slum, air pollution, water pollution. Business should be aware and should try to reduce them. मतलब क्या? देखो, बिजनेस तो प्रॉफिट कमा रहा है, पर अगर वो प्रॉफिट का अगर कुछ हिस्सा इन चीजों में डाल देता है, ठीक है, सो दैट ये चीजें ना हो. फॉर एग्जाम्पल क्या?
पॉवर्टी ना बढ़े, पोल्यूशन कम हो, बिजनेस शुड इंश्योर कि वो कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में वो चिमनी रहती है ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द चिमनीज आर इंस्टॉल्ड, है ना, तो आप पोल्यूशन अपने एंड से कम करो, राइट। एंड द लास्ट वन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। नाउ सी व्हाट इज written in this. Business should take care of the society. For that, they should give donation for good cause, offering scholarship for higher education, etc. तो ऐसे भी साइड में साइड आपको कुछ ऐसे भी चीजें करनी है जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, जो सोसाइटी को फेवर करे, है ना, so that you know once the society knows that this business not only does business transaction but also contributes in the society by way of charity donation or by होल्डिंग ब्लड डोनेशन कैंपेन्स, है ना, ऐसे कुछ कुछ चीजें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना। सो आप फिर लोगों के नजरों में आते हो, है ना। सो इफ देर आर पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ योर बिजनेस और ऑफ योर गुड्स, उनको भी पता चल जाएगा, राइट। सो कुछ कुछ चीजें आपको सोसाइटी के लिए भी करनी पड़ती हैं जिसमें आपका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ठीक है। ये किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके। चलो, नाउ रेस्ट ऑफ द we'll see in the next lecture, ठीक है। प्लीज आज हमने जितना किया है उसको बस आप रिवाइज कर लेना, ठीक है।